Welcome back to our channel. Today let us do chapter 10 of class 8 standard reading for understanding. इसमें different poems और different comprehension passages दिए हुए हैं. You need to find out the answers of these poems and comprehension passages. Let us start from part A1. On the basis of your reading of the poem, complete the following passage by filling the blanks with one word only. As the day changes into dusk, the trees whisper among themselves. Throughout the day, the trees stand still, but as soon as it is dark, they stretch their branches, shift a little, and flex their boughs, and recall the era when they, like men, could move on the earth. इस पोएम में बता रहा है कि ट्रीज़ जो हैं वो एक एरा था, एक टाइम पीरियड था जब ट्रीज़ भी मूव कर सकते थे. अभी तो वो स्टैंड स्टिल कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही रात होती है ट्रीज मूव करते हैं. ऐसा एक एरा था. यहाँ पे इस पोएम में ऐसे लिखा हुआ है. ओके चिल्ड्रन, मैं यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही हूँ क्योंकि एग्जाम में सेम पोएम्स और सेम कॉम्प्रहेंशन पैसेजेस तो नहीं आएंगे, तो आंसर्स तो डिफ़र करेंगे. सो आई एम नॉट गोइंग वेरी डीपली एज आई ऑलवेज डू. Could move on the earth. Standing at his window, the speaker often observes these trees, and so they too know them well. The speaker, just like these trees, is a dreamer. यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है कि स्पीकर जो है वो भी एक ड्रीमर है और ट्रीज भी एक ड्रीमर हैं. ए बोल्ड लूजर. They listen to their whispering voice and language and bow before them to seek benediction. Benediction का मतलब है blessings. Now let us look at A2. On the basis of your understanding of the poem, answer the following questions. At least 2 times to read करना children before you answer. भले आप, I suggest you to find out the answers by yourselves. Which trees are referred to in the poem? Trees of oak, walnut, spruce and pine are referred in the poem. What does stretch their limbs, flex their fingers refer to? To relax and get ready for another day after standing for such a लॉन्ग टाइम. ए लॉन्ग टाइम है चिल्ड्रन. यहाँ पे प्लेस सफिशेंट नहीं थी तो ये काफ़ी छोटे लेटर्स में आ गया है. आई एम अगेन रिपीटिंग आफ्टर स्टैंडिंग फॉर सच अ लॉन्ग टाइम. ओके. Why does the poet bow his head before their arms? The poet bow his head before their arms in order to ask for benediction. मैंने ऊपर बता दिया था कि benediction means blessings है. Try to find out the answers by yourself. मेरे इस वीडियो से आप अपने आंसर्स को चेक कर लेना, क्या आपके आंसर्स और मेरे आंसर्स मैच कर रहे हैं. थोड़ा सा डिफर करे और मीनिंग सेम रहे, देन योर आंसर्स आर ऑल्सो करेक्ट. नाउ लेट अस लुक एट द नेक्स्ट पोएम. Little one, don't be afraid of this big river. Read the poem before you answer this children. मैं read नहीं कर रही हूँ because I feel कि time waste है. You can read by yourself. On the basis of your understanding of the poem, answer the following questions. Whom does these warm arms refer to? Line 2. Line 2 में warm arms जो दे रखा है वो किसको refer कर रहा है? These warm arms refer to the waves of the big river. Big river के waves को refer कर रहा है. What does the speaker mean by but do not take from any man his song? Do not take from any man his song means कि किसी की भी खुशी को छीनो नहीं. Speaker wants to tell the little boy to enjoy his own life but not sadden. But not sadden. SADDEN है ये. Sadden anybody else's life. किसी और की ज़िंदगी में दुख मत दो. सी दिस इज़ ऑल्सो ए प्रिंसिपल टू फॉलो इन आवर लाइफ ऑल्सो कि हम कितना भी खुश हो, हम खुश रहें, ठीक है, बट किसी को दुख दे के हम खुश ना हो. नाउ लेट अस लुक एट B2. ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पोएम, कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो. द स्पीकर वॉन्ट्स हिज सन टू ग्रो टॉल, बी वाइज एंड स्ट्रॉन्ग, वॉक बोल्डली, बी सेफ, लव वेल, लव ऑल डे लॉन्ग. ये सारे पोएम में दिए हुए हैं, मैंने पोएम में से ही लिए हैं, अपने आप नहीं लिखे हैं. गो थ्रू द पोएम बिफोर यू आंसर. द स्पीकर डज नॉट वॉन्ट हिज सन टू टेक फ्रॉम एनी मैन हिज सॉन्ग. टेक फ्रॉम एनी मैन हिज सॉन्ग का मतलब है कि किसी से भी उसकी खुशी ना छीनो. ओके. हार्म और हर्ट एनी वन. बी अफ्रेड ऑफ द डार्क नाइट, कि कभी भी डरना नहीं है. कब? डार्क नाइट्स में डरना नहीं है. ये तो सारे मदर्स और फादर्स अपने बच्चों के लिए यही दुआ करते हैं. नाउ लेट अस लुक एट द नेक्स्ट पोएम, सिंपैथी.
इफ़ आई वर ओनली अ लिटिल पप्पी नॉट योर बेबी। ये रविंद्रनाथ टैगोर का लिखा हुआ पोएम है। अगर मैं आपका बेटा ना हो के एक लिटिल पप्पी होता तो मुझसे आप कैसे ट्रीट करते मम्मा। इस तरीके से ये पोएम स्टार्ट होता है कि एक बार तो पप्पी से कंपेयर करता है पोएट, फिर दूसरी बार कंपेयर करता है ग्रीन पैरेट से। बहुत ही प्यारा पोएम है रविंद्रनाथ टैगोर का लिखा हुआ। गो थ्रू दिस पोएम बिफोर यू आंसर। मैं सीधे आपको आंसर्स पे लेके जा रही हूँ। On the basis of your understanding of the poem, complete the passage by filling the blanks with one word only. The child asks his mother if he were a small puppy and not her baby, whether she would drive him off if he tried to eat from her dish. If so, the child says he would never come to his mother when she calls him again. यहाँ पे बच्चा जो है मम्मा को धमकी दे रहा है। तो जैसे मदर्स बुलाती हैं तो बच्चे पास आते हैं मम्मा के, तो मम्मा बहुत खुश हो जाती है ना। तो यहाँ पे बच्चा जो है मम्मा को धमकी दे रहा है कि मैं कभी नहीं आता अगर आप मुझे वापस बुलाते। इसी यहाँ पे कितना चाइल्डिश थॉट है ना बच्चे का। He further asks his mother if she would keep him in chain so that he does not fly away. If he were a parrot, अगर एक पैरेट होता तो क्या मुझे चेन्स में रखते ताकि मैं उड़ न जाऊँ। He wants to know if she would shake her finger at him for gnawing at his chain night and day. पैरेट जो है अपनी चेन्स को से खुश नहीं होते ना। कोई भी एनिमल अगर उसको चेन करके रखो तो खुश नहीं होता है। तो यहाँ पे gnawing at his chain night and day का मतलब है कि उसकी चेन को देख के सैड फील करना। इफ़ येस, अगर उसकी मम्मा का आंसर येस है, फिर वो बच्चा जो है वो धमकी देता है। द चाइल्ड would never come into the arms of his mother and run away into the woods. woods माने फॉरेस्ट है या ट्रीज है। ये ब्रैकेट में जो मैंने लिखा है ना, आपको मीनिंग पता करने के लिए लिखा है। यू डोंट राइट इट, इसको मत लिखना आप लोग, ओके। नाउ लेट अस लुक एट आंसर द फॉलोइंग। Is the title of the poem appropriate? Explain with reasons. Yes, the title of the poem is appropriate. बिल्कुल suitable है sympathy, because the child is showing sympathy towards animals. इसको आप अपने आप भी लिख सकते हो चिल्ड्रन। नाउ यहाँ पे देखो पेपर, पेप अप योर लाइफ। पेपर काली मिर्च जो है उसके बारे में है पैसेज पूरा। इतना बड़ा पैसेज है पूरा। गो थ्रू इट बिफोर यू आंसर। नाउ लेट अस लुक एट D1. On the basis of your understanding of the passage, answer the following questions. What does the author mean by the phrase worth a king's ransom in para 1? यहाँ पे worth a king's ransom का मतलब है किंग को छुड़ाने के लिए देने जाने वाले पैसे के इक्वल, यानी something which is very precious, something which has a great value. Okay, this is the meaning of worth a king's ransom. Worth a king's ransom in para 1 means that black pepper has a huge value. Now let us look at second one. List 3 characteristics which the author associates with black pepper. See यहाँ पे pungent smelling, sharp tasting, tiny dried berry. ये characteristics जो है पैसेज में दिए हुए हैं, मैंने इनको पैसेज में से ही लिया है। Give 2 points to prove that the cultivation of pepper dates back to times immemorial. यहाँ पे आपके पैसेज में जो दिए रखे हैं उसी में से मैंने लिए हैं। Ancient संस्कृत लिटरेचर mentions it as does the Bible. यहाँ पे संस्कृत लिटरेचर में इसको जैसे बाइबल में भी मेंशन किया हुआ है। There are no confirmed records of its origin. कब origin हुई यह हमें पता ही नहीं है, तो इससे हमें पता चलता है ना कि कितना पुराना है, तभी तो हमें इसके origin नहीं मालूम। List 2 uses of pepper. Used as a preservative, इसको preservative की तरह यूज़ किया जाता है। इसमें दिया हुआ है कि मम्मी इसके प्रिजर्व करने के लिए यूज़ किया हुआ है करके। Write 3 medicinal qualities of pepper. फर्स्ट वन इज़ ब्लैक पेपर इज़ यूज टू ट्रीट फॉर कोल्ड। ये सबको मालूम है ना, सर्दी खांसी में मम्मी आपको चाय में काली मिर्च डाल के देती है ना। तो ये इस ब्लैक पेपर को यूज़ करते हैं टू ट्रीट कोल्ड। ब्लैक पेपर हैज़ एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़। ब्लैक पेपर कीप्स अवे डेंटल कैविटीज़। इसमें और थोड़े मेडिसिनल क्वालिटीज़ हैं और काफ़ी सारे हैं पैसेज में दिए हुए। व्हाट इज़ द सिनोनिम गिवन टू पेपर अकॉर्डिंग टू इट्स वैल्यू और वर्थ? ब्लैक गोल्ड है इसका सिनोनिम, यानी ये गोल्ड से इक्वल है, ब्लैक गोल्ड दिया हुआ है। स्कैटर्ड, फुल ऑफ, पैरा 1 में ऐसा कौन सा वर्ड है जिसकी मीनिंग स्कैटर्ड और फुल ऑफ से है? तो पैरा 1 में स्प्लैटर्ड वर्ड है, तो वो दिस गिव्स द मीनिंग ऑफ स्कैटर्ड।
अपटाइन, पैरा 2 में वर्ड है प्रोक्यूर्ड, ये वर्ड आपके पैसेज में दिया हुआ है, मैंने वहीं से लिया है प्रोक्यूर्ड। नाउ लेट अस लुक एट नेक्स्ट कॉम्प्रहेंशन पैसेज दैट इज स्ट्रेस बस्टर्स। ये भी काफ़ी बहुत बड़ा पैसेज है, इसलिए मैं रीड नहीं कर रही हूँ, डायरेक्टली वी आर डूइंग इवन, मैं सीधे इसके आंसर्स बता रही हूँ। ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। लिस्ट 2 डिसीजेस दैट आर ट्रिगर्ड बाय स्ट्रेस। फर्स्ट वन है हार्ट अटैक, स्ट्रेस ज़्यादा लेने से हार्ट अटैक्स हो सकते हैं, स्ट्रेस ज़्यादा लेने से डिप्रेशन हो सकता है। मेंशन 2 सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस। हेडेक्स, बार बार सर दर्द होना स्ट्रेस की वजह से होता है। स्लीपलेसनेस, स्ट्रेस की वजह से होता है, रातों में नींद ना आना। गिव 2 reasons why stress related problems have increased in recent times. ड्यू टू द फास्ट पेस ऑफ लाइफ, पेस माने स्पीड है, फास्ट स्पीड ऑफ लाइफ, हर चीज़ जल्दी जल्दी करना है, तो इससे क्या होता है कि स्ट्रेस होता है। मे बी समवन मे बी कंप्लेनिंग इन योर होम ऑल्सो, कि किसी को अगर स्ट्रेस है तो ये पैसेज ज़रूर उनसे रीड करवाना चिल्ड्रन, दिस इज़ वेरी यूजफुल। ड्यू टू कॉन्स्टेंट हार्ड वर्क टू परफॉर्म बेटर, और एक जो हमारे अंदर होता है ना कि मुझे सबसे अच्छा बनना है, सबसे अच्छा करना है, सबसे अच्छा करना है, अच्छी बात है ये क्वालिटी होना, बट ये हमें स्ट्रेस भी देती है, तो समटाइम्स हमें इस क्वालिटी से बाहर निकलना भी बेटर है। लिस्ट 2 ways to beat stress. Change of thinking mode into positive and relaxing thoughts. Slow down and relax. Perform a hobby. तो ये लिस्ट 2 ways स्ट्रेस को दूर करने के ये 2 तरीके हैं कि स्लो डाउन, अपने एक दिन रेस्ट कर लो, रिलैक्स करो, अपने हॉबीज़ को परफॉर्म करो, और किसी की हॉबी हो सकती है क्रिकेट प्लेइंग, परफॉर्म योर हॉबी। Now let us look at E2. Find words from the passage which mean the same as the following. Proverbs. All work and no play makes Jack a dull boy. ये पैरा 1 में से है, all work and no play। अगर पूरा दिन भर काम ही करता रहा और कुछ भी नहीं खेला तो जैक क्या बन जाएगा, डल बॉय बन जाएगा। एक प्रोवर्ब है एंड इट इज़ वेरी ट्रू ऑल्सो। तो थोड़ा थोड़ा हमें एंटरटेनमेंट भी नेसेसरी है। दिस गिव्स रिलैक्सेशन टू योर ब्रेन एंड टू योर बॉडी ऑल्सो। फ्रेंडली, पैरा 5 में से फ्रेंडली वर्ड को आपको निकालना है, उसकी सेम मीनिंग। अमायबल मीन्स फ्रेंडली, तो यहाँ पे मैंने लिखा है अमायबल। द नेक्स्ट पैरा इज अबाउट द अम्ब्रेला स्टोरी, कि अम्ब्रेला कैसे बना है, तो इस पर मैं ज़्यादा फोकस नहीं कर रही हूँ। गो थ्रू द पैसेज बिफोर यू आंसर। ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द पैसेज कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पैरासोल, द अर्लीस्ट अम्ब्रेला, was invented for shading the user from the sun. Umbrella ribs made of whalebones were not long lasting because whalebones tended to lose their elasticity when thoroughly soaked and cracked, and broke when properly not dried. I am repeating, and broke when properly not dried. Okay? An oiled or waxed umbrella could prove to be useful because they repel rain. Complete the following table with relevant information from the passage you have just read. अम्ब्रेला कवर्स यूज्ड, अम्ब्रेला की कवर्स को बनाने के लिए यूज़ होता था कॉटन, कैनवस, सिल्क, एल्पका, वूल। ओके। अम्ब्रेला फ्रेम्स, रिप्स यूज्ड, अम्ब्रेला के जो फ्रेम्स होते हैं ना उसको बनाने के लिए यूज़ होता था व्हेलबोन, मलबेरी बार और बैम्बू। रेड चाइनीज अम्ब्रेला वॉज यूज्ड बाय रॉयल्टी या फिर रॉयल पीपल, यहाँ पे आप रॉयल पीपल भी लिख सकते हो। ब्लू चाइनीज अम्ब्रेला वॉज यूज्ड बाय कॉमन पीपल, कॉमन पीपल यूज करते थे ब्लू अम्ब्रेलास चाइना में, और रेड अम्ब्रेलास यूज करते थे रॉयल पीपल। फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन द सेम एज द फॉलोइंग। बर्निंग, स्कॉर्चिंग हीट कहते हैं ना, तो वो वाला वर्ड है ये। स्कॉर्चिंग मीन्स बर्निंग। टू थिंक, पॉन्डर, पॉन्डर माने सोचना, टू थिंक। डिस्ट्रॉय, रुइंड। डिविजन, सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन मीन्स डिविजन। Now let us look at the next passage, that is habits. We are all creatures of habits. Our habits reflect who we are. ये पूरा habits के बारे में बहुत अच्छा passage है. Go through it children before you do the answers. On the basis of your reading of the above passage, complete the following. First we make habits and then habits make or break us. By make or break us, the author means if it is a good habit, it makes us. If the habit is bad, it breaks us. See, habits make us or break us. इसका मतलब है
अगर हमारी हैबिट अच्छी है तो वो हैबिट हमें बहुत अच्छा बनाती है। अगर हमारी हैबिट बुरी है, जैसे कंटिन्यू बैठ के गेम्स खेल रहे हैं हम, तो वो हैबिट it's a bad habit, it's going to spoil us. Now let us look at second one. Mention any 4 undesirable habits listed in the above passage. Nervousness, overeating, anxiety, नकल क्रैकिंग। ऐसे फिंगर्स को कई बच्चे तोड़ते रहते हैं, फिंगर्स को बार बार जब भी टेंशन में होते हैं तो फिंगर्स को तोड़ते हुए रहते हैं, उसको कहते हैं नकल क्रैकिंग कहते हैं। नर्वसनेस, बार बार नर्वस हो जाना, इट्स ऑल्सो ए बैड हैबिट। Which 4 ways have been suggested for getting rid of undesirable habits? एक्सरसाइज है जो हमें हमारे हैबिट्स से छुड़ा सकती है। सेकेंड वन, क्रिएटिव हॉबी, किसी हॉबी को अपने आप डेवलप करो। फाइंडिंग न्यू वेज ऑफ हेल्पिंग अदर्स, राइट इन ए स्मॉल नोटबुक द हैबिट यू वांट टू चेंज एंड एनालाइज देम। ओके, नाउ लेट अस लुक एट फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन द सेम एज द फॉलोइंग। अपटेन, अक्वाइड है, पैरा 2 में से लिया है। इरिटेटिंग, annoying, अपोजिशन, रेसिस्ट है, अपोजिशन रेसिस्ट। ओके, चैप्टर 10 मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। अगर चिल्ड्रन आपको ये मेरा वीडियो हेल्पफुल है तो गिव मी योर वैल्यूएबल लाइक्स एंड डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। आगे मैं जो वीडियोस अपलोड करूँगी वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे, जैसे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन पेपर्स हैं, सारे अपलोड करूँगी। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। Thanks a lot. Thanks for being with us.